कि हर हफ्ते हमारा एक पॉडकास्ट का शो आएगा, एपिसोड आएगा, एपिसोड की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। सो मैंने आपको बोला था जम्मू की बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप जैसे देख रहे होंगे कुछ बहुत सारा क्रिएटिव सा हो रहा है पीछे। तो आज मैं जिस लेडी के साथ हूँ, शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल। सो वेलकम। ये बहुत सही बनाया हुआ आपने। थैंक यू यार, स्टूडेंट से बनाया। सो आज जो मेरी गेस्ट है उनका नाम है मानसी रतन। शी रन्स एन इंस्टीट्यूट इन जम्मू ओनली जो त्रिकुटा नगर में है। उसका नाम MG डिज़ाइन इंस्टीट्यूट करके नाम है। तो अब हम मैम से पूछेंगे, मैम टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Actually, my journey in the field of fashion started in the year 1998 when I got through NIFT, that's National Institute of Fashion Technology, New Delhi. वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था and वहाँ से then I completed my course and after completion of my course मैं जम्मू वापस आई and जम्मू में there were hardly any avenues उस टाइम पे कि जो fashion field से अगर आपने education ली हो तो यहाँ पे कुछ करा जाए. There were hardly any export houses नहीं हैं, buying houses नहीं हैं. डिज़ाइन हाउसेस भी नहीं थे, तो देयर वाज नॉट मच ऑफ अ स्कोप. सो इनिशियली आई ओपनड अप अ स्मॉल लिटिल स्टूडियो एंड उसके बाद आई हैड माय चिल्ड्रन एंड ऑल, तो मैंने वो सबैटिकल लिया लाइफ में. एंड देन 2008 ऑनवर्ड्स आई होली सोली गॉट इनटू द फील्ड ऑफ फैशन एजुकेशन बिकॉज मुझे मार्केट में वो गैप नज़र आया कि यहाँ पे कोई भी अच्छा क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं था जो फैशन एजुकेशन प्रोवाइड करे. And even ये exposure देना to the general masses that this is a field which is a very good field and which has a lot of scope. और जितने भी creative minded लोग होते हैं उनको यहाँ पे satisfaction मिलती है इस field में. So that is when I got into fashion education and that is what I have been doing since then and now I run my own institute by the name of MG Design School. Okay. So ma'am, आपने जैसे बोला कि you came back from Delhi. So मतलब ऐसे तो मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई अगर वापस आ जाता है बाहर जाके जम्मू से. मतलब ये तो ना मेरी ट्रिगरिंग सा पॉइंट था कि मतलब why you came back? Actually, I had plans of settling down here, so वो मेरा एक reason था that I came back. अब सही decision गलत decision तो it's been so many years, so much water under the bridge, so I will not go into that. But yes, that actually did hamper maybe जो मेरा career path रहता अगर मैंने I already had a job there, मेरे को export house में job मिल चुका था because NIFT में campus placement होती है. But I gave up that job and came back. So बस I think it was destiny. This is how it was supposed to be. I was supposed to be an entrepreneur and not somebody who would take a job. Okay. So जैसे आपने बताया ना कि आपका इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा MG Designs and your name is मानसी रतन. Actually, I have been MG most of my life. मानसी गुप्ता भी मेरी एक identity है. And I'm actually separated now, so I've gone back to my maiden name, which is Ratan. Okay. So, but ये है कि MG मेरी identity का बहुत बड़ा हिस्सा है. मैंने एक बड़ा portion of my life as मानसी गुप्ता spend किया है. True. And it has given me 2 beautiful children and this lovely institute. So I'm proudly an MGN as well. And yes, my identity is Mansi Ratan. That is the person that I am. So मैं MG भी हूँ और मानसी रतन भी हूँ. So मतलब जैसे आपने बोला कि 1999 में आपने बोला कि you started your career. I don't think so उस टाइम पे पेरेंट्स इतने वो सपोर्टिव होंगे इस फील्ड के लिए. We were fortunate. मैं और मेरी सिस्टर है और हम दोनों ने लिफ्ट से किया है. Oh nice. So she's elder to me, 4 years elder to me. But we were brought up in a nuclear family. That was my father, my mother, and me and my sister. So my father was the first person from JNK to go to NSD, National School of Drama. Okay. So वो already एक alternative career से ही थे मेरे father. And my mother was from the education line. But education line she became a teacher and all that after she got married. So I feel now, उस वक्त तो मैं realize नहीं होता था, but now I feel that both of my parents were very ahead of their times. तो हमारी जब upbringing थी, एक तो हम बड़े isolated रहते थे. We used to live in the school campus, so we were not exposed to what is going on in the world. तो हमारे लिए वही that is what made sense and that is how we felt the world was. तो हमारी upbringing थी कि हमारे जैसे क्लासिक्स नॉवल क्लासिक्स पढ़े हुए हैं. वी यूज्ड टू बी दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू बी डूइंग. हमारा टाइम पास क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, क्लासिक्स पढ़ रहे हैं. आज नाउ वी रियलाइज दैट पीपल को पता, पीपल डोंट इवन नो व्हाट classics are in terms of novels and music. We are listening to Bhimsen Joshi and we are listening to Ravi Shankar and all that. That is how we grew up. Okay. और उस वक्त हमें ये कभी नहीं realize हुआ कि हमारी growing up कुछ different हो रही है या हमारे, because that is all that we had seen. तो हमारे लिए वो बिल्कुल normal था.
Now when I meet people, they feel that, oh, you know so much and you know about music also. But then that is how we grew up. So there was no other way. So they were already so ahead of their times and very modern. Both my parents were. So ऐसा हमारे को घर से कभी ये नहीं रहा था. My mother only introduced us to this field क्योंकि NIFT तब नया नया खुला था. So उन्होंने टीवी में एक डॉक्यूमेंट्री देखी about NIFT and मेरी सिस्टर के लिए, my elder sister, and my mother was like, I think तुझे ऐसे किसी कॉलेज में जाना चाहिए, तेरे लिए बना है. तो तब हम कहाँ सोचते थे, you know, कि cracking the entrance and all, and but then we filled up the forms. My sister got through first and उसके बाद because she was there, हालांकि मेरा first choice नहीं था fashion designing. मेरा first choice था mass communication. So is your sister is in this field? Yes, she is. Okay. She has her own studio plus she is HOD with the university. Fashion design का department वो head करती है UPS देहरादून में. And she runs an online brand also. गौरव की बहुत काम करती है मेरी बहन भी. मतलब काम करने वाले लोग दोनों पूरी family. तो अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके लिए ये है कि मतलब यू हैव टू, आपने से बोला कि आपने स्कूल में ऐसे, ऐसा कौन सा स्कूल है भाई जहाँ ये सब सिखाते हैं? नागबनी. Oh my God, you're from my school only. I studied in नागबनी और नागबनी आपको बताओ कैसा वो कैंपस है, दूर जाके और पानी बहता है और वो सब. So I think it's a dreamy place, the ideal place to grow up in. And the other thing was I was very active in co-curricular activities. I was a bright student but not a topper. Because I never used to work hard, study hard or anything, but ये है कि I used to get good marks. But हाँ, co-curricular activities में I have been very active since the beginning. Second class से मैं debates बोल रही हूँ, recitations बोल रही हूँ, elocutions, plays में participate करना, dances में participate करना. वो जो annual day बस बीच में जो लड़की डांस कर रही होती है ना, वो मैं थी. क्या बात है? अब जैसे I have two sons, तो जब मैं उनके स्कूल के फंक्शन में जाती हूँ तो एक फंक्शन में वो था. There was a play, मेरे ख्याल से प्ले भी कोई अच्छा भारी ओथेलो या कोई ऐसा कोई बड़ा तगड़ा प्ले था, शेक्सपियर का कोई प्ले था. So एक मेरा बेटा पेड़ बना हुआ था और दूसरा मेरा बेटा सोल्जर बना हुआ था जो 1 मिनट में आया और निकल गया. मैं पूरा उनका एनुअल फंक्शन देख के मैंने कहा तुम्हें पता है मैं वो लड़की होती थी जो बीच में डांस कर रही होती, तुम्हारा एनुअल फंक्शन देख के मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती. पेड़. So like I was very active even in my college days. गांधीनगर कॉलेज से मैंने कॉलेज किया. Okay. So वहाँ पे भी I used to be very active in all these things, zonals की, nationals की, बहुत ज़्यादा participate करती थी इनको. So मतलब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं about your childhood, मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बहुत याद आती है कि मतलब I want to live those moments, या कुछ कोई एक मोमेंट जो सबसे ज़्यादा याद आता हो, कुछ आप बताना चाहो? You know, Nagbani was so peaceful and we were blessed that we grew up there. इतना शांति थी. हाँ, उसका ये एक नुकसान था that we were not really exposed to what the real world is and how people can be. वो आज भी मेरे में मुझे लगता है naivety है. I'm not that. But that peace I still miss. And if I tell you honestly, मुझे आज भी dreams आते हैं तो I'm in Nagbani. So yes. So that I really miss. थोड़े दिन पहले I had gone with my mom only. तो हम लोग नाग देवता temple गए और वहाँ भी sat and we were like यार इतनी शांति ना और कहीं नहीं है. True. जैसे आपने बोला कि आपका इंस्टीट्यूट है, so एक फीमेल के लिए कितना मुश्किल है काम करना, उसके बारे में आपकी क्या जर्नी है एज अ फीमेल, कुछ बता सकते हो? It's not, I will not say कि मुश्किल है या it actually depends upon you कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो. बट हाँ ये परसेप्शन आज भी लोगों का है, चाहे हम जितना भी बोलें कि वुमेन लिबरेशन हो गई है, ये हो गया वो हो गया, बट यू नो येट दैट थिंग ऑलवेज कम्स दैट दे ऑलवेज विल टेक यू लाइटली. उनको लगेगा कि नहीं ये क्या, ये कौन सा काम है, ये क्या काम किया, ये क्या हुआ. तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट रहता है. Any example ऐसे I don't want you to मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. अच्छा मेरे को सीरियसली लेते सारे. Okay. मैं अपने आप को छोड़ के. अच्छा आप अपने आप को छोड़ के. मैं अपने आप को That's great. But as such मेरे को personal I don't think I've had bad वो. But ये कि it is actually because वो perfection expect की जाती है because that you will be running the हाउसहोल्ड ऑल्सो बिल्कुल परफेक्शन से, आप एज मदरहुड भी आप परफेक्शन से करोगे और आपका काम भी परफेक्शन से रहा होगा. हाँ वो प्रेशर मेरे पे भी रहा हमेशा इन माई लाइफ की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यू नो नोबडी शुड से कि नो मेरे को काम करने से कोई ना रोके, तो उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए आप कई बार यू नो बेंड ओवर बैकवर्ड्स कि आप ये भी फॉरगिव करते हो वो भी फॉरगिव करते हो कि एटलीस्ट मुझे काम तो करने दे रहे हैं. सो वो दैट आई हैव सफर्ड विद व्हिच आई डोंट थिंक द न्यू जनरेशन इज वो जो नई जनरेशन की गर्ल्स हैं दे हैव मच मोर सेंस
इट्स नॉट वर्थ इट, ये जो हम लोग स्ट्रगल करते रहे और फाइट करते रहे। मतलब जैसे आपने जैसे बोला कि यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि मतलब आपको हर एक चीज में बड़ी सारी, पर आप जैसे आप सिखाते हो यहाँ पे, आपके यहाँ पे काफी सारी लड़कियां आती होंगी ना जो बोलती होंगी हमें मतलब करने नहीं देते, मोस्टली सीखने नहीं देते, तो आप उनके लिए मतलब कुछ ऐसा कोई आप, क्योंकि मैं एज अगर खुद की बात करूँ ना तो मेरे लिए भी आप एक इंस्पिरेशन हो, बिकॉज बिकॉज आपने जिस टाइम पे स्टार्ट किया था उस टाइम पे एक स्टेप लेना बहुत बड़ी बात होती थी, और ना यू मतलब आई डोंट थिंक सो कोई आपको नहीं जानता होगा, ऐसा कोई होगा ही नहीं इंसान। आपने मुझे खुश कर दिया। बट स्टिल मतलब ऐसा होता है ना कि बड़ी सारी लड़कियां होती है जो यहाँ पे आती हैं बड़ी डीमोटिवेटेड होती है, आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो, ऐसा क्या बोलते हो? Yes, that happens a lot with us because कभी भी इस फील्ड को आज भी फर्स्ट चॉइस नहीं मान के पेरेंट्स ने दिया होता, तो जो यहाँ तक पहुँचता है फर्स्ट चॉइस में नहीं आता, स्ट्रगल कर करके आता है, या तो लाइफ में कुछ मिसहैप हो गया होता है, या काफ़ी लड़के पेरेंट्स से आते हैं। सो द पॉइंट इज दैट दिस हैपन्स विद एवरीवन, बट हाँ ये है कि MJ has always been a very happy place. ये मेरे से अगर कोई भी पूछेगा ना कि कैसा आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है in your institute, I will say this only, that there is such a happy vibe around this place and it has always been, चाहे वो मेरी फैकल्टी हो चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो, हम लोग यहाँ आके हम बहुत इंजॉय करते हैं और हम सीखते भी हैं, हम सब कुछ भी करते हैं, हम आगे लाइफ में भी बढ़ते हैं, बट इट्स नॉट, वी आर नॉट, हम लोग ऐसे डाउन या मोरोस नहीं होते या दुख नहीं मनाते हम किसी चीज़ का, हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो सेलिब्रेट करने वाले मेरा इवन इफ इट्स अ डाउनफॉल, अगर दुख भी है, वी हैव ऑलवेज मूव्ड ऑन लाइक दिस एंड विद एलान, एंड इट्स ट्रू फॉर मी एंड एज वेल एज फॉर ऑल द गर्ल्स हु बीन एसोसिएटेड विद मी। सेकेंडली हम लाइफ लॉन्ग हैंड होल्डिंग देते हैं, जैसे जो मेरा स्टूडेंट रहा है वो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है, किसी को आज भी अगर जरूरत पड़ती है तो दे गिव मी अ कॉल कि मेरे को ऐसे ऐसे मुझे जॉब चाहिए, कैन यू हेल्प मी आउट। येस्टरडे ओनली आई हैव सेंट समबडी ओवर फॉर एन इंटरव्यू, उसको भी यही था कि अब मेरे को आई एम इन सम फाइनेंशियल पर मुझे अर्जेंटली जॉब चाहिए, सो मैंने उसको भेजा, और बहुत अच्छी स्टूडेंट थी वो मेरी, बट ये कि शादी कर ली और ब्रेक आ गया, बच्चा हुआ तो ब्रेक आ गया था, तो शी वाज लाइक कि वो मुझे इतनी सैलरी दे देंगे, मुझे इतनी सैलरी, मैं कहा हाँ दे देंगे, तुम्हें क्या हो गया। तो देन आई कॉल्ड हर अप एंड वी वर टेक्स्ट पे हमें बात कर रहे थे, देन आई कॉल्ड हर अप, मैंने कहा योर ओनली प्रॉब्लम इज योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने कहा मुझे पता है यू विल बी गेटिंग दिस मच, मुझे पता है तुम्हारी वर्थ, तुम्हें क्या हो गया। मैंने कहा इज इट बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम दिस फील्ड फॉर सो मच, इज दैट व्हाई यू आर सो जिटरी। मैंने कहा जाओ यार, कॉन्फिडेंस जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उससे ज्यादा उसको ऑफर हुआ है, उसने मुझे फोन किया, मुझे इतना बोला, मैं बस टेलिंग यू, मैं कहा बिकॉज यू वर नर्वस, तुमको लग रहा था कि तुम्हारे को ब्रेक है, तुम्हें क्यों बताने की जरूरत है कि तुम्हारे को ब्रेक है या जो भी है, गो है। जैसे आप बोल रहे हो कि आपकी फील्ड, तो आपने बता सकते हो कि आप मतलब थोड़ा बाइफरकेट कर सकते हो कि आप क्या सिखाते हो, क्या मतलब आपके पास अगर जो भी हमारे ऑडियंस आपको देख रही है तो किसी को आप क्या पता है कि उनके लिए ये हमारा वो बन जाएगी, वो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी, हम तो कब से आपको ढूंढ रहे थे। हम लोग सिखाते हैं फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, वी हैव ब्यूटी एंड मेकअप कोर्सेज, वी हैव बुटीक मैनेजमेंट कोर्सेज। बुटीक मैनेजमेंट हमने नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इसकी बहुत नीड हमें फील हुई, कुछ लोग हैं जो सिर्फ बुटीक मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, सो दिस इज अ न्यू कोर्स एंड इज डूइंग वेरी वेल। हम कोर्स छोटा रखा है बट इट हैज अ लॉट ऑफ मीट टू इट, उसमें हम बहुत कुछ सिखाते हैं इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ विद इन 3 months, क्योंकि जिन्हें खोलनी होती है बुटीक उनको ज़्यादा टाइम नहीं होता, उनको अर्जेंसी होती है कि हमें जल्दी सीखना है, so that is one thing। उसके अलावा we have a lot of communication skills and personality development modules as well, those are our smaller courses which we go to the different universities and वहाँ सबके लिए भी है, and it is for our students also। plus fashion designing का field ऐसा है कि personality development automatically हो जाती है, and then we have fashion styling also। okay, so मतलब आप क्या डिग्रीज प्रोवाइड करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो? We provide them with diplomas. Degrees actually what has happened is कि UGC ने distance education degrees invalidate कर दी after 2014। So and Jammu University or any other private university here does not offer a fashion design course। So ये एक बड़ा gap, अगर कोई सुन रहा है please help us। इसमें हमें help चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है, valid degree नहीं है in JNK। So any university, if it comes forward with a fashion designing course and then it starts affiliating colleges, so then we can have a degree, but otherwise till that time these are private diplomas only which that we can offer। ठीक है, तो मतलब जैसे यहाँ पे बड़ी सारी, मतलब मैं लड़कियों की बात भी करूँगी और मैरिड लेडीज़ की भी बात करूँगी, बड़ी सारी लेडीज़ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने ना मतलब फैमिली से सपोर्ट नहीं होता है उनको, बट दे स्टिल वांट टू लर्न। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा होती है कि लड़कियों को भी काम करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, उनका यही होता है कि हम छोटा मोटा कुछ शुरू कर लें,
तो आप कुछ एडवाइस दे सकते हो उनको कि किस तरह से मतलब किक स्टार्ट कर सकते हो आप चीज़ें, अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए होगी तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो? और Definitely, I'm always there to help. जिसको भी if anybody needs any kind of guidance also, I can guide you कि किस पाथ पे आप चल सकते हो. आज की डेट में because of Instagram and things like social media, it's very easy to open a business. तो अगर आप बिल्कुल छोटे लेवल पे भी काम शुरू करो आप कर सकते हो. So and I just identify your talent. वो talent कुछ भी हो सकता है. It could be painting, it could be stitching, it could even be कि आपकी choice बहुत अच्छी है. तो मे बी जो आप क्यूरेट करके लाओ, खुद नहीं भी बना रहे हो पर आप वो क्यूरेटेड सामान भी जो ला रहे हो, जो आप इकट्ठा करके आप सेल करोगे ऑन द प्लेटफॉर्म, वो इतना अच्छा हो कि वो इट स्टार्ट्स डूइंग वेरी वेल, यू कीप लिटिल लेस मार्जिन. सो इट्स वेरी वेरी, आजकल तो कितना कुछ हो, चाहे वो खोल रहे हैं ये खोल रहे हैं, मतलब आज तो तूफान आया हुआ है इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो जस्ट डू दैट. एंड इफ यू सी कोविड में कितनी औरतें सामने निकल के आई हैं जिन्होंने अपने अपने बिजनेसेस खोले, क्रोशिया का काम करके बिजनेसेस खोल रहे हैं, making those dream catchers बना रहे हैं, कुछ there n number of opportunities right now. And I feel that earning a living is not it should not be a gender thing कि आदमी कमाता है और औरत काम करती है घर का. ये न्यूट्रल होनी चाहिए दोनों चीज़ें, कि आदमी घर का काम करता है और औरत कमाती है, ये भी उतना ही नॉर्मल होना चाहिए जितना कि वाइस वर्सा. सो आई थिंक ये ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीवन शुड अर्न अ लिविंग एंड एवरीवन शुड नो द बेसिक स्किल्स ऑफ कुकिंग, क्लीनिंग. सो ये दोनों को आने चाहिए, आदमी औरत को पैसा कमाना भी दोनों को आना चाहिए, कुकिंग क्लीनिंग में दोनों को आनी चाहिए. तब ठीक है, आपने ये पॉइंट करना. आई हैव अ क्वेश्चन. लाइक यू हैव 2 sons, राइट? तो मैं गलत तो नहीं बोल रही? नहीं आती कोशिश है मेरी. तो मतलब एज मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उस तरह से बोलो, पर आपको ऐसा मतलब बताना चाहो, आगे मैसेज देना चाहो कि मतलब जैसे बड़े सारे लोग होते हैं ना, वो का और की में बड़ा फर्क करते हैं. तो मतलब जैसे आप खुद एक लड़की हो कि यू हैव सन, आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि मेरी लड़की होनी चाहिए? मेरी इच्छा जरूर है. मैं 2 बहुत बट एक्चुअली व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, एज आई टोल्ड यू, तो हमें कभी ये भी नहीं रियलाइज हुआ कि हम खाली 2 बहनें हैं. तो ये जब हम कभी बाहर जाते हैं, कोई हमें बोलता कि अच्छा भाई नहीं है, तो फिर हमें रियलाइज होता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है कि भाई होना जरूरी है. हम तो बड़े खुश थे कि हमारे घर में कोई लड़का नहीं है. We were very happy. So that's the thing. And for me, yes, for my sister now has 2 daughters and I have 2 sons. तो हमारे किसी का भी ना वैसा नहीं है, जोड़ी वैसी नहीं है, बनी एक लड़का एक लड़की वाली नहीं हुई. So जो भी होता, that is what is destiny. As you were saying, for my boys, मेरे लिए भी work in progress है, बहुत struggle है कि मैं उनको कुकिंग क्लीनिंग सिखाऊं. वो तो मेरे ख्याल से टीनेज इश्यूज भी होते हैं क्लीनिंग वाले, वो तो लड़कियों में भी. सो दैट, बट ये है कि हाँ बेसिक अपना मैगी शैगी खुद बना लेते हैं, चाय शाय बना लेते हैं. मतलब ये आप बोलते हैं कि सब ये चीज़ तो आनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. मैं एज अ वर्किंग वुमन आप जैसे I don't pamper them at all in that sense कि I don't pamper them at all. उस हिसाब से ये तो अपना काम करेंगे तो करेंगे, वो तो करना है. जैसे अभी हमारी बात हुई ना कि आपने बोला कि मतलब आपने बेसिक कुकिंग, मतलब वो सब चीज़ें अपने बेसिक जो भी होती है चीज़ें वो अपने सन्स को सिखाई हैं. तो मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी कि मतलब बड़े सारे ऐसे मतलब बच्चे होते हैं, लड़कों की बात करूँ स्पेसिफिकली, मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, बड़े सारे होते हैं उनको ना एक मतलब मम्मी, लड़कियां लड़की दोनों को बोल सकती हूँ मैं इसमें, कि मम्मी भी ना इज्जत ही नहीं करते. मम्मी को ऐसे लाइटली लेते हैं बड़ा. नहीं आएगी. हाँ तो नहीं, पर एक्चुअली मैंने ना बदतमीजी बचपन से बर्दाश्त नहीं करी. जैसे वो बच्चे जब टैंट्रम करते हैं ना नीचे, कुछ बच्चों का हैबिट होता है, लाइक माय एल्डर सन वाज नॉट दैट वे, आई एम सो सॉरी, बट माय यंगर सन वाज, वो नीचे लेट के कई बार टैंट्रम थ्रू. मैंने उसको कभी नहीं उठाया या कभी उसको पैम्पर नहीं किया. मुझे होता था तो अब तू खत्म कर ले ये जो भी तू कर रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे. सो व्हेन यू निप इट ना, बिल्कुल बचपन से अगर आप उसको चीज़ को इनकरेज नहीं करो तो वहीं खत्म हो जाती है. और अभी एक रिसेंट में एपिसोड सुनाती हूँ हमारा, मेरे और मेरे बेटे का, अगेन माय यंगर सन, आई एम सो सॉरी. तो हम लोग, मेरी उसकी ना बहुत बहस हो गई हम लोग, क्योंकि वो अभी वी आर फिलिंग अप कॉलेजेस के फॉर्म्स ना, तो कहाँ फिल करना है कहाँ नहीं, उस पर हमारी बहुत ज़्यादा बहस हो गई. हम लोग गाड़ी में थे, तो मैंने नहीं आपके साथ जाना, और मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा उतर जा. एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग आल्सो. आधा पौना किलोमीटर मैंने उसको चलाया, फिर मैंने वापस उसको बिठा लिया गाड़ी में. बट हाँ, आई डू नॉट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट, तो इसलिए इट्स नॉट नहीं है ऐसा डिसरिस्पेक्ट. बट हाँ, इट्स नॉट इवन अ डिक्टेटोरियल रिलेशनशिप कि मैं उन पे, हमारा बड़ा, इट्स अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप दैट आई हैव विद माय चिल्ड्रन. आई एम इवन अ पार्ट ऑफ देयर प्राइवेट जो होते हैं इंस्टाग्राम पे, क्लोज फ्रेंड्स. ओह माय गॉड, सीरियसली. क्लोज फ्रेंड्स, कई बार तो मैं बोलती भैया ये तुमने अपनी मम्मी को नहीं दिखाना होता. क्लोज फ्रेंड्स, और इवन जो प्राइवेट अकाउंट्स भी होते हैं आजकल बच्चों के, यस, उसके में आया
I'm That's part of great. it. हाँ. That's great. So and they're very encouraging. अगर आप देखोगे कभी मेरे Instagram post पे भी होगा तो my sons are the first ones जो फटाफट उसको like करेंगे और वो करेंगे. And rather we have a very friendly relationship. मैं एक episode बताती हूँ. उस दिन एक दिन ये सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे मेरा प्रैंक करके उस पे वीडियो YouTube पे वीडियो डालनी और बट ये कि पकड़े गए और बच गई मैं तो तब भी मुझे लगा मैंने कहा तुम इंसान हो क्या तुम्हारे को अपनी माँ के अलावा कोई नहीं मिलता तो दैट वाज इट्स अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप डिक्टेटोरियल ना मेरी तरफ से ना उनकी तरफ से बदतमीजी है बड़े हो चुके हैं छोटे बच्चे नहीं हैं सो ये है कि फ्रेंडली हैं हम लोग तो जैसे आप फ्रेंडली वाली में बोल रहे हो ना बड़े सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज होता है इस चीज के सामने बोला क्लोज फ्रेंड्स वाला तो बहुत ही ज्यादा ब्रिज होता है मेरे अकॉर्डिंगली कि मतलब ऐसा ब्रिज तो मतलब कोई ऐसा आप एडवाइस आप पहले एक एडवाइस एज अ पेरेंट देना फिर एज अ बच्चों के लिए मतलब आप बताना कि क्या क्यों आपके लिए जो फर्स्ट आप जिससे बात कर सकते हो आफ्टर ब्रेकडाउन वो पेरेंट ही होना चाहिए. यस आई फील पेरेंट्स को ये फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहिए बिकॉज आज की डेट में बहुत ज़रूरी है बिकॉज चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स आपको नहीं पता वो किसके साथ बात कर रहे हैं आपको नहीं पता वो किसके साथ एक्सपोज हो चुके हैं आज की डेट में एंड एक ये और दूसरा स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं so वो the child should be able to at least speak to you and tell you about it and for children also I say that even if it is difficult please go and share with the parents because उनसे बड़ा तुम्हारा well wisher और कोई नहीं होगा your friends are not going to be anybody else is not going to be a well wisher and your parents have seen the world हमें उस एज में लगता है कि हमें बहुत हम स्मार्ट हो गए नए हम लोग स्मार्ट हुए होते हैं तो हमें लगता है बहुत स्मार्ट हो गए और हमें सब पता है पर ऐसा नहीं होता पेरेंट्स को वो एक्सपीरियंस होता है दे हैव गॉन थ्रू दोज इयर्स तो वो शुड लिसन टू देम एंड एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आज की डेट में बहुत ज़रूरी है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बोथ साइड्स. ठीक है तो मतलब जैसे अब ये क्वेश्चन आया था तो एक बड़ा सा होता है कि लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना नहीं आती मतलब मतलब मैं हर किसी का नहीं बोल सकती बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि आपके 2 बेटे हैं तो मतलब मैंने उनको हमेशा से ऐसे रखा है सो 2 बेटों को मतलब एक औरत की इज्जत करना आपने कुछ तो उसके लिए किया होगा ना कि मतलब क्या टॉलरेट नहीं की बदतमीजी बस यही किया दैट इज वन थिंग ऐसी स्पेशली चीज होती है एंड कभी मैंने उनको एक्स्ट्रा पैम्पर नहीं किया या कि भैया तुम आसमान से उतर के आए हो वो आई नेवर गिव देम दैट काइंड ऑफ अ थिंग एंड फ्रेंडली आई वाज ऑलवेज फ्रेंडली सिंस द वेरी बिगिनिंग ये नहीं कि आज वो बड़े हुए हैं तो मैं आई वाज ऑलवेज वेरी फ्रेंडली आई वाज ऑलवेज वेरी इजी टू टॉक टू जब दोनों चाइल्डहुड से जब टीनेज में एंटर किए 13 के हुए हैं तो आई सैट देम डाउन एंड हैड अ word with them and उनको बोला कि भाई now you're going to see so many changes in you emotions तुम्हारी बहुत ऊपर नीचे जाएंगी but consider me your friend and you can confide in me so that is how it has been and मतलब they have relationship like girlfriend मतलब वो भी पता सब पता है मेरे को वो पता है ना मुझे नहीं पता मुझे वो भी पता है मैं क्या sometimes I feel कि just मतलब बस करो यार नहीं I don't want to know this also ज़्यादा हो गया ठीक है मतलब जैसे ना I have a very good relationship with your girlfriends also oh my god मेरे को ना मार मेरे मम्मी मेरे बच्चों ने ये मम्मी कहाँ मिलती है भाई मेरे बच्चों ने मुझे मार देना ये पॉडकास्ट अगर मैं उनको ब्लॉक कैसे करूँ I will have to block them नहीं close friends से उनको मार देना पड़ेगा कोई नहीं कर लेंगे हम जैसे मतलब ये सारी चीजें तो होती रहती है ना मेरे अकॉर्डिंगली मतलब बड़ी सारी लेडीज ना मतलब जो सिंगल मदर होती हैं ऑनेस्ट मतलब थोड़ा सा एक से वो बात करती हूँ कि बोलती बड़ा मुश्किल होता है मुश्किल तो बहुत तो मुश्किल होता है मुश्किल है क्या मुश्किल होता है बिकॉज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑन यू और मुझे कई बार लगता है कि हाँ जहाँ पे उनको वाकई डर की या डिसिप्लिन की जरूरत है ना दैट आई सीरियसली समटाइम्स आई फील आई लैक बिकॉज हाँ वी आर फ्रेंडली और मेरे को वैसे भी ना बहुत ज्यादा मेरे को गुस्सा या रेज नहीं आता है यू आर स्वीट यू आर स्वीट सो दैट समटाइम्स आई फील कि कुछ जगहों पे जहाँ पे अगर डिसिप्लिन की जरूरत है एक तो वो स्ट्रगल बहुत रहता है ऊपर से यू आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग यू डोंट इवन नो ये राइट डिसीजन है रॉन्ग डिसीजन है बड़ी सारी चीजें होती हैं हाँ वो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसी बात नहीं है बहुत स्ट्रगल होती है नॉर्मल लाइफ में कितनी सारी स्ट्रगल्स होती है एवरीथिंग यू हैव टू हैंडल इट योरसेल्फ बट अगेन डेस्टिनी इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी तो मतलब जैसे मतलब यू आर वर्किंग वुमन तो आप मतलब यू रन अ स्कूल काइंड ऑफ स्कूल ही है ये जहाँ पे मतलब क्रिएटिव माइंड्स को बिल्ड करते हो बट जैसे आपके स्कूल मतलब बच्चों का भी स्कूल होता होगा कभी पीटीएम की टाइमिंग्स होती है कि यहाँ की टाइमिंग्स मैच हुई वो कुछ कोई एक इंसिडेंट बता दो कि कुछ ऐसा होगा ना नहीं वो तो मैनेज हो जाता था मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस मेरा हमेशा ठीक रहा दैट नेवर वाज अ प्रॉब्लम बिकॉज
माय कॉलेज ऑलवेज स्टार्ट्स अ लिटिल लेटर. हम लोग 10 o'clock स्टार्ट करते हैं, Okay. तो स्कूल जनरली उससे पहले ही हो जाता है. जैसे पीटीएम हाँ, वगैरह 8 से 10 के बीच में ही होती है. हाँ, So वो हाँ. मेरा कभी क्लैश नहीं हुआ, बिकॉज हमारा टाइमिंग इज क्वाइट रिलैक्स्ड. प्लस मेरे को ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है दैट आई नीड टू बी हियर ऑल द टाइम ना, तो मैं आराम से आई कुड लाइक यू हैव पीपल ओवर देयर, हाँ, जो हाँ, आपने हाँ, क्रिएटिव हाँ. माइंड्स को हायर भी किया हुआ है. यस. तो You मैं are- हैव अ वेरी स्ट्रांग एंड नाइस टीम इन प्लेस. तो मुझे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पैनिक है या मुझे आने की 100% आने की जरूरत है. So it has been like that, but easily वो manage. That was never an issue. वो मेरे को easily manage हुआ. Work life balance was ठीक है. seamless. वैसे भी जम्मू बड़ी लेट बैक जगह है, काम कितना ही काम है. कितना ही काम है ये, सही अपने आप बात को compare करो with metro cities, the way people are True. working, the hours people are giving. हम लोग कितने काम, आधा दिन काम करके घुस है. बहुत सही बात है. जैसे मतलब कोई एक मैसेज आप देना चाहो, मतलब कोई एक ऐसी एडवाइस आप देना चाहो किसी को, मतलब किसी मतलब आप ऐसे बंदे को भी दे सकते हो एडवाइस जो अभी काम नहीं कर रहा है. मैं एक्चुअली एवरीबडी आई वुड गिव द एडवाइस टू फॉलो योर पैशन एंड डू समथिंग और द अदर. लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट यही जो आपको रोल्स डिफाइन किए गए हैं कि चलो उठे खाना बनाया ये किया. नहीं, फाइंड योर पर्पस, व्हाटएवर योर पैशन इज, वो करो यार. आजकल कुछ सो मेनी वुमेन हैव स्टार्टेड रनिंग व्हिच इज सच अ पॉजिटिव थिंग, यू नो. हाँ, मैं बहुत फिसड्डी हूँ. मेरे बिल्कुल एंड में पीछे भाग रही होती हूँ. मैं बिल्कुल इसकी पब्लिसिटी नहीं करती, बट यू नो आई फाइंड women who have come out with running, I really appreciate them a lot because so many of them were homemakers इससे पहले, और now they are winning medals. वो ultra marathons run कर रही हैं, तो आप सोचो कितना बड़ा उनका वो it has come out. वो they are shining like diamonds right now because they polished that one skill that they have. So वही है, जो भी आपने कुछ ना कुछ skill तो हर एक में होता है, ऐसा नहीं होता. And women are coming forward also, जो bakers, home bakers बन गई हुई हैं. So do that. Find a purpose of your life. Life is not just, you know, you've been given one life. उसको ऐसे waste करना is not, it's so unfortunate if you would just waste your life. So find that purpose and do something. Just the last question मेरे माइंड में से स्टक हुआ कि मतलब स्टक भी नहीं बोल सकती मैं, कि बड़े सारे लोग ना ऐसे जो आपकी ये फील्ड है जो आप सिखाते हो, लोग इसको हॉबी की तरह ट्रीट करते हैं, एक पैशन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं. और मतलब बड़े सारे ऐसे लड़के भी होते हैं जिनको इस फील्ड में आना, बड़े सारे शाय हो जाते हैं कि ये तो लड़कियों की चीज है, हम कैसे करेंगे. नहीं, लड़कियों की तो कहीं से भी फील्ड नहीं है. आप जितने भी डिजाइनर्स देखो, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, बट जैसे आप लो लेवल की बात कर सारे रहे हैं आदमी ना, है. नहीं, लो लेवल इवन फॉर मी आई वुड से माय जो जितने मेरे मेल स्टूडेंट्स पास आउट करके गए, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. अपने बिजनेसेस चला रहे हैं फुल फ्लेज, बहुत अच्छे. एंड दिस इज अ फील्ड जिसमें आप आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो. सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. आई एग्री ऑल्सो कि पीपल ऑलवेज सी इट एज, यू नो, ये हॉबी है, ये है वो है. बट जब आप जितने भी ये देखो जो एंटरप्राइजेस रन हो रहे हैं, आप कितने लोगों को आगे एम्प्लॉयमेंट्स दे रहे हो. एंड जितनों को आप हायर भी करते हो, अच्छी खासी सैलरीज पे आप हायर करते हो. यू नो योरसेल्फ, यू आर रनिंग अ बिजनेस. सो यू आर रनिंग हाउस होल्ड्स, यू आर रनिंग फैमिलीज. आगे जो आपके आगे एम्ब्रॉयडर्स होंगे, जो उनकी फैमिलीज होंगी. तो हाउ इज दिस, यू नो, आई थिंक इट इज द टाइम हैज कम टू चेंज दिस माइंडसेट एंड चेंज दिस पर्सपेक्टिव. एंड एनीबडी हु इज क्रिएटिव एंड हैज द टैलेंट विल फ्लरिश इन दिस फील्ड. ये मुझे आपकी साड़ी बहुत अच्छी लगी है. क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? मानसी गुप्ता ही लिखा हुआ है. और ये मेरी स्टूडेंट ने मेरे को गिफ्ट करी थी. You teach handmade as well. Yes, we just had a handmade workshop. आज सुबह ही खत्म, चल रही है अभी. We are still in the process. कितने डेज का ऐसे वर्कशॉप्स होती रहती हैं? Oh yes, this year we're going to do a lot of workshops because we're getting amazing response of these workshops. ये 3 days की है हैंड पेंट की वर्कशॉप. इससे पहले हमने टाई एंड डाई की थी. हैंड पेंट की मेरे हिसाब से हमें एक और वर्कशॉप करनी पड़ेगी बिकॉज वी हैड टू क्लोज एडमिशंस फॉर दिस वर्कशॉप एंड वी स्टिल हैव काफी बच्चे जो वेट कर रहे हैं कि हम इसको दोबारा करें. सो वी माइट हैव टू डू वन मोर. तो मतलब अगर किसी को ये वर्कशॉप के बारे में, आप जैसे कुछ कोई भी वर्कशॉप लॉन्च कर रहे हो, कोई भी जानना है, तो कैसे, कोई सोशल मीडिया पे? या वी आर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हैं हम. एनजी डिजाइन स्कूल, आई एम मानसी रतन, मेरे हैंडल्स भी हैं. एंड यू कैन कनेक्ट विद अस एंड गूगल करो हमको, हम गूगल पे भी हैं. नाइस. ठीक है. So we close this thing. It was nice having you. बहुत मजा आया. Nice, मुझे बहुत मजा आया.